Good morning, students. Today, for the 11th class, we are going to prepare alkanes. So, methods of preparation of alkanes. So, जो alkanes है, they are obtained from variable source for the large scale preparation of the number of hydrocarbons, including alkanes. But many alkanes are not available from the petroleum, or we might need not might be a laboratory methods of preparation हम करेंगे. Some of the laboratory methods of preparation जो है वो उनमें से पहला है from unsaturated hydrocarbons. So अगर हमें alkanes बनाने हैं तो पहले हम unsaturated hydrocarbons में जो आते हैं alkenes and alkynes से हम प्रिपेयर कर सकते हैं उनको. So the process of addition of hydrogen to an unsaturated compound, the process of addition of hydrogen to an unsaturated compound in presence of a catalyst is called hydrogenation or reduction. क्योंकि हम रिडक्शन जानते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो दैट्स कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और सिंपली दैट्स कॉल्ड रिडक्शन. So alkenes and alkynes add one or two molecules of hydrogen respectively in presence of a catalyst such as Raney nickel. निकल और रैनी निकल जो है प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, जो कि सब के सब, चाहे निकल की बात करें, चाहे हम पैलेडियम की बात करें या चाहे हम प्लैटिनम की बात करें, ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से ये कैटलिस्ट्स यूज़ होते हैं एंड टू फॉर्म अल्केन्स. सो जैसे आप पहला देख सकते हो, ईथीन में हाइड्रोजनेशन करो, H2 ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो यू विल गेट ईथेन. सिंपली प्रोपीन में करो हाइड्रोजनेशन, यू विल गेट प्रोपैन. प्रोपाइन में करो हाइड्रोजनेशन एंड यू विल गेट प्रोपैन एज वेल. तो हाइड्रोजनेशन स्टेप वाइज भी हो सकते हैं. अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करना है, हाइड्रोजनेशन करनी है, रिडक्शन करनी है, तो पहले आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो उसको, फिर डबल बॉन्ड को फिर से हाइड्रोजनेट करो, फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. या डायरेक्टली आप ट्रिपल बॉन्ड में ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करो तो यू विल गेट this alkane. So with platinum, palladium and Raney nickel, hydrogenation proceeds smoothly and quantitatively at ordinary temperatures and pressure. क्योंकि कैटलिस्ट आपने यूज़ किया है तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हाउ एवर विद ऑर्डिनरी निकल, रैनी निकल के बगैर अगर ऑर्डिनरी निकल होता, relatively higher temperatures are often required. The hydrogenation of unsaturated hydrocarbons using ordinary nickel at a temperature of about 523 to 573 Kelvin is commonly known as Sabatier and Sanders reaction or reduction. सो अगर आप रेनी निकल की जगह ऑर्डिनरी निकल यूज़ करते हो तो उस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है सेबेटियर एंड सैंडर्स रिडक्शन और रिएक्शन. सो देखो निकल लेकर टेम्परेचर थोड़ा रेज होता है 523 टू 573 केल्विन पे आपने ये रिएक्शन करा है. सो यू हैव ईथीन, यू हैव दिस टेम्परेचर एंड यू आर गेटिंग ईथैन. So the hydrogenation reaction is used in the manufacture of वनस्पति घी, जो भी वनस्पति घी जो मीन्स एक saturated alkaline and from edible vegetable oils. The second method is from alkyl halides. Alkyl halides can be converted into alkanes by any one of the following methods. Alkyl halides की बात हम करते हैं, that's RX. तो पहला थ्रू ग्रिग्नॉड reagent, very very important. Grignard reagent is very very important, discovered by Victor Grignard in 1900 and it was awarded a Nobel Prize for the same in 1912. So alkyl halides, especially bromides and iodides, react with magnesium metal in the presence of dry ethoxyethane, that's dry ether, to form alkyl magnesium halides. Alkyl magnesium halides or known as Grignard reagents. These are commonly known as Grignard reagent. क्या alkyl magnesium halides or known as Grignard reagents after the name of their discoverer Victor Grignard, who was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1912 for the discovery of these versatile reagents. देखो RX plus Mg आपने लिया तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन गया ग्रिग्नॉड रिएजेंट, दैट्स RMgX. सो रिएक्शन देखेंगे, आपने लिया alkyl bromide, that's CH3CH2Br, that's ethyl bromide plus magnesium, that's you are getting ethyl magnesium bromide. अब अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, इसकी पोलरिटी को चेक करेंगे, सिंस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 देन मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2, देयरफॉर CMg बॉन्ड जो है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वो पोलर होगा, इज क्वाइट पोलर. हेंस द ग्रिग्नॉड रिएजेंट रेडली रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन्स सच एज वाटर, एसिड्स, अल्कोहल्स, अमोनिया, अमाइंस एटसेट्रा टू फॉर्म अल्केन्स.
अब जो RMgX में या CH3MgX में कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलर है, दैट्स क्वाइट अ पोलर बॉन्ड, और पोलर बॉन्ड की वजह से आपके जो R पे या अल्काइल ग्रुप पे यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम विल बियर अ पॉजिटिव चार्ज। और जो वो नेगेटिव चार्ज है आपके अल्काइल ग्रुप पे या आपके मिथाइल इथाइल किसी भी ग्रुप पे जो होगा अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, तो दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट विल एक्ट एज अ बेस नाउ। सो याद रखेंगे ग्रिग्नोड एक्ट रिएजेंट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल। सो आपने लिया अब CH3CH2MgBr, दैट्स नथिंग बट ग्रिग्नोड रिएजेंट प्लस वाटर। सो वाटर जो है इसमें एसिडिक और एक्टिव प्रोटॉन होने की वजह से आपका इथाइल ग्रुप वहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। इथाइल ग्रुप जब प्रोटॉन हासिल करेगा तो ये बन जाएगा ईथेन, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। So it was the preparation of alkanes through alkyl halides by using Grignard reagent. तो सेकंड है वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? वर्ट्स रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड प्रेफरेबली ब्रोमाइड और आयोडाइड is treated with metallic sodium in presence of dry ethyl ether. A symmetrical alkane containing double the number of carbon atoms present in the alkyl group is formed. This reaction is called Wirtz reaction. So आप लेते हो यहाँ पे दो अल्काइल हैलाइड्स, उनको सोडियम के साथ ट्रीट करते हो और यू आर गेटिंग अल्केन्स। आप रिएक्शन देख सकते हो, हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड ट्वाइस प्लस सोडियम ट्वाइस, तो यू आर गेटिंग ईथेन। सो मिथाइल ब्रोमाइड में एक कार्बन है लेकिन ईथेन में दो कार्बन, यू आर गेटिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स। दिस वर्ट्स रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल मीन्स जहाँ पे जो आपके अल्काइल ग्रुप्स है वो एक जैसे है, मतलब आप ये नहीं ले सकते एक लोगे आप इथाइल तो दूसरे मिथाइल, तो यू हैव टू टेक द सेम इथाइल इथाइल और मिथाइल मिथाइल। Symmetrical ethers, that's alkanes containing even number. Symmetrical का दूसरा मतलब है even number of carbon atoms. However, if two different alkyl halides are used to prepare an alkane with odd number of carbon atoms, a mixture of three alkanes is actually produced. अगर आप डिफरेंट ले लेते हो, सपोज मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड, तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो ऑड नंबर का बनेगा। एंड वहाँ पे रिएक्शन का, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे चांसेस है कि सेल्फ एसोसिएशन हो जाए मॉलिक्यूल्स का, फ्री रेडिकल्स का सेल्फ एसोसिएशन हो जाए, क्रॉस एसोसिएशन हो जाए, सेल्फ लिंकिंग क्रॉस लिंकिंग हो जाए, और उसकी वजह से डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। सो दिस इज ड्यू द रीजन दैट द अल्काइल हैलाइड्स इन एडिशन टू रिएक्टिंग विद ईच अदर आल्सो रिएक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स, दैट सेल्फ लिंकिंग गिविंग अ मिक्सचर ऑफ थ्री अल्केन्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। देखो हमने लिया है आयोडोमीथेन, हमने लिया है आयोडोईथेन, तो हमारे पास बन गया प्रोपेन। द सेम थिंग वी हैव आयोडोईथेन तो हमारे पास बन गया ब्यूटेन, इट इज सिमेट्रिकल। सो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज अल्केन्स आर वेरी क्लोज। अब अगर आप देखेंगे प्रोपेन बन गया, इथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, टेकिंग द सेम, तो लेकिन जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज एंड सेपरेशन में मुश्किल हो जाएगा, एंड हेंस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिस ऑफ सेपरेशन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू वो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हेन सम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है क्लोज वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, सो इट गेट्स वेरी difficult to separate them. So it is because of this drawback that Wirtz reaction is used for synthesis of only symmetrical alkanes and not for the preparation of unsymmetrical alkanes, that's alkanes containing odd number of carbon atoms. So mechanism अगर हम देखना चाहेंगे, so the different mechanisms have been suggested for Wirtz reaction. पहला देखो through intermediate formation of an organometallic compound, RX plus twice RA तो बन जाता है अल्काइल सोडियम। फिर देखो अल्काइल सोडियम जो है वो RX दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, अल्केन बन गया थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है वो देखो, RX प्लस Na गिव्स R फ्री रेडिकल, दैट्स फ्री रेडिकल बन गया प्लस सोडियम हैलाइड। सो वो जो R फ्री रेडिकल है वो आपस में सेल्फ लिंक करेंगे तो बन जाएगा अल्केन। सो दिस वाज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkane, second method. The third is Corey-House reaction. Wirtz reaction doesn't give good yields of unsymmetrical alkanes. क्योंकि हमने अभी देखा Wirtz reaction के थ्रू सिमेट्रिकल alkanes नहीं बनते, तो हमने और एक लिया Corey-House reaction. alkanes containing odd number of carbon atoms अगर हमें बनाने हैं, unsymmetrical alkanes अगर बनाने हैं, however Corey-House reaction can be used to prepare both symmetrical and unsymmetrical alkanes in good yields. इसमें एक एडवांटेज है ओवर द Wirtz reaction कि यहाँ से हम both symmetrical as well as unsymmetrical alkanes बना सकते हैं. In this reaction, the alkyl halide is first treated with lithium metal in dry ether to form alkyl lithium. Alkyl lithium is again an organometallic compound which is then allowed to react with cuprous iodide to yield lithium dialkyl copper.
लिथियम डाइल्काइल कॉपर thus obtained on subsequent treatment with a suitable alkyl halide gives the desired प्रोडक्ट। अब देखो पहले रिएक्शन में क्या करना होता है, हमने अल्काइल हैलाइड लिया, उसको लीडियम के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं इन ड्राई ईथर तो बन जाता है बेटा अल्काइल लीडियम। सो अल्काइल लीडियम 2 मॉलिक्यूल्स उसको कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया जाता है इन दिस कोरी हाउस रिएक्शन, तो बन जाता है कंपाउंड लीडियम डाई अल्काइल कॉपर, इट्स लीडियम डाइल्काइल कॉपर। और लीडियम डाइल्काइल कॉपर जो है उसको हम फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है आपका अल्केन प्लस अल्काइल कॉपर। सो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड, उसको लीडियम के साथ ट्रीट किया तो बन गया इथाइल लीडियम, इथाइल लीडियम को फिर से कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट किया तो बन गया लीडियम डायल इथाइल कॉपर। सो लीडियम डायल इथाइल कॉपर को फिर से अल्काइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया तो बन गया एन पेंटेन। तो दिस वाज द रिएक्शन, आई होप इट्स क्लियर।